Yes, very good morning. So I received a homework from y'all. You had written the digits, but most of you have sent me only Indian system. International system, only Anjali Soni has practiced. But a lot of you are getting it wrong. So I will, in the last, I will do a recap on the digits also, how to write your number names in national, international and Indian system. Okay, right? Any doubts? You people have any doubts, please already note it down and keep. I will again give a recap, but if you have any doubts regarding that you are not able to follow how to write an international system, I guess no, everyone says no doubt, but then I didn't see anyone, writing in international system. Why is it so? Only Anjali Soni had sent me both in Indian and international system. Anyway, let's move further. So what a letter writing, formal and informal, will look simultaneously. First, we look at the layout. Layout means how do we go about the format? कैसे letter लिखने का? What are the important things which you shouldn't be missing? Okay, so we'll see the layout and then we will come back to the content. Content means what we have to write in that. क्या content लिखने वाले हैं उसमें? Okay, that we'll do later. Right. Okay. Yes. Good morning, everybody. Yeah. Okay. So formal and informal. Now, formal means what? जो ऑफिस के लिए लिखते हैं, ऐसा सब जो बिजनेस लेटर्स होते हैं वो फॉर्मल होते हैं. ओके. और ये जो है इनफॉर्मल लेटर होते हैं. राइट. ओके. So informal in the sense which you write to your friends, your relatives and all that, it is informal. You don't have to be, when you talk also, there is a formal language, informal language भी है. Hey, ping me करके informal में बोल सकते हैं. Please reach out to me or please call me. यहाँ पे please hit me भी बोलते हैं. तो ये सब hit me, ping me माने इसका मतलब है मुझे फोन करो. मगर ये लैंग्वेज यहाँ पे नहीं यूज होगा ना. वैसे ही लेटर राइटिंग में भी आपको डिफरेंट आपका फॉर्मेट होता है. ओके. तो प्लीज कॉल मी कुले, प्लीज बज मी, पिंग मी, हिट मी, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं इनफॉर्मली व्हेन यू स्पीक विथ योर फ्रेंड्स. तो उतना डिटेल अभी हम नहीं जाएंगे क्योंकि ये स्पोकन इंग्लिश क्लास नहीं है. तो वी विल गो नाउ हियर formal and informal. Now what you will do, first of all you write the address. Okay, so एक सिस्टम होता है कि पूरा मार्जिन यहाँ पे यही पेपर है आपका, तो सब एक ही साइड में आएगा. जैसे कि अभी एड्रेस 2 है तो फिर आपका जो भी एड्रेस है आपका नाम लिखोगे यहाँ पे, नेम और आपका एड्रेस, यहाँ पे डेट लिखोगे, यहाँ पे सब्जेक्ट लिखोगे, यहाँ पे 2 लिखोगे, फिर यहाँ पे रेस्पेक्टेड सर या मैडम लिखोगे या उनका नाम मालूम है तो नाम लिखोगे. फिर यहाँ पे कंटेंट सब यहाँ पे ही आएगा, एक ही साइड. पैराग्राफ करके यहाँ पे नहीं शुरू करोगे. एवरीथिंग विल कम हियर. ओके. देन योर्स सिंसियरली लिख सकते हो या योर्स फेथफुली लिख सकते हो और यहाँ पे आपका साइन कर सकते हो. So this one is the layout for the formal. Now informal, you can also write the address this side and the date this side also informal. But this is a very easy method, no confusion कि मुझे यहाँ पर एड्रेस लिखना है कि यहाँ पर साइन करना है. वो सब आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा. Everything can be maintained in the left hand side margin. This is the easiest way of writing a formal letter. Now, content we will see how to write, what to write, but the format is, this is a very easy method to write. Clear? Next, here also, yours sincerely, yours faithfully. It depends upon how you are addressing them. Supposing आपने ऊपर Mr. and Mrs. address किया है तो आप yours sincerely लिखोगे. Supposing आपने sir और madam करके address किया है तो आप yours faithfully लिखोगे. ठीक है. ऊपर आपने क्या एड्रेस किया है यहाँ पे, टू सर, डियर सर करके क्या है करके किसको एड्रेस किया है करके, इट डिपेंड्स ऑन दैट. ओके. रेस्पेक्टेड या डियर सर या डियर मैडम करके क्या इधर यहाँ पे आपने एड्रेस किया है, उसके ऊपर से यहाँ पे ये कोई भी एक चूज कर सकते हो. यू कैन चूज एइदर वन.
Is the board visible or it's too small? Is the board clear? Okay, now informal is the same thing. You'll write your two over here, your name, then you'll write your date. Here you can write, or you can even write over here. No one is going to question you in informal why you wrote that to here or from here or whatever it is. And no need to write subject in informal. ये कोई subject अगर informal, when will you write? You will ask how are you, what how is your day today. But most of the time we don't write letters because of WhatsApp and a lot of Instagram and all that. Now we have stopped writing letters. Yes? How many of you still write letters? Please type in the chat box. How many of you still are, prefer to write a letter? No? No one? Yes. So इसका एक अलग ही एक खुशी मिलता है that you get a separate happiness when you write letters. Okay. So please do write letters. Go to the post office, get the inland letter and write letters to your friend. That's a very nice way of expressing things. You know, just by typing in WhatsApp, how are you? And over. So do write letter. Suddenly किसी को लेटर पोस्ट करके देखिए ना, कितना खुशी मिलता है उन लोग को. आपका रिलेटिव हो या दोस्त हो, किसी को अचानक एक लेटर पोस्ट करके देखिए, वो पढ़ के उनके मुंह में कितनी खुशी आती है, मुझे बताना आप बाद में. So do write letters. So don't need to have a subject. Let's come to the matter. No need to write subject. Now here you will write dear, whatever आपका दोस्त का नाम हो, dear करके लिखोगे. उसके बाद में जो भी आपका content है यहाँ पर, कैसे हो, क्या हो, क्या नहीं, पूछ के final में आपको you will conclude that. Conclude कैसे करोगे letter? कि give my love to everybody in the family or all, या all short form में all. यहाँ पे आप व्हाट्सएप लैंग्वेज भी यूज कर सकते हो. हाउ आर यू ऐसे भी यूज कर सकते हो. नो वन इज गोइंग टू आस्क यू कि तूने क्यों हाउ आर यू ऐसे लिखा करके. इनफॉर्मल में कोई भी पूछने वाला नहीं है आपको. ओके. गॉट टू गो बाय, गॉट टू गो बाय फॉर नाउ, BFN माने शॉर्ट फॉर्म बाय फॉर नाउ. So you can write all these in your informal and here you will sign yours lovingly करके आपका नाम लिखोगे. या इस तरफ भी लिख सकते हो, इस तरफ भी लिख सकते हो. फॉर इनफॉर्मल यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द फॉर्मेट. You can write however you like. Okay, but the basic should be there. Your to whom you are addressing, their address should be there on the inland letter. आपके बाहर जो है रिसिप्टेंट का एड्रेस रहना चाहिए. अगर आप प्रॉपर लेटर लिख रहे हो, आप लीव लेटर ऐसे कुछ लिख रहे हो तो यहाँ पर ये फॉर्मल में आएगा. यहाँ पर फ्रॉम आपका यहाँ पे लिखोगे. वेट, आई विल पुट वन मोर कॉलम हियर. आप फ्रॉम करके आपका नाम लिख लीजिए. इस तरफ लिखेंगे. ओके, जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे बता रहे हैं. आपका नाम और एड्रेस सब लिखोगे और यहाँ पे टू करके द टीचर और प्रिंसिपल करके यहाँ पर जो भी स्कूल का नाम है यहाँ पर लिख के, फिर बाद में सब्जेक्ट आप द लीव अप्लाइड, लीव अप्लाई करना है तो लीव, या तो लीव टेकन करके कौन सा तारीख है, कौन सा तारीख से तारीख लीव लिया है. अब फिर बाद में रिस्पेक्टेड सर और मैडम और डियर करके लिखे आप कंटेंट लिखोगे, क्यों लीव लिया है, बच्चे ने क्यों लीव लिया है करके. ये आप शुरू से बच्चों को ही सिखा सकते हो. अगर 7th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं तो खुद लीव लेटर लिखे और आपका सिग्नेचर आप करो. तो शुरू से यू कैन गिव देम अ प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग अ लीव लेटर फ्रॉम द बिगिनिंग इटसेल्फ. or you can make them sit beside you and tell them okay now tell me what I have to do. तो उनके सामने लिखिए, उनको भी प्रैक्टिस होगी ताकि आप बड़े होके आपके जैसे प्रॉब्लम नहीं हो. मैम फ्रॉम मी आ जा भेजा रहा वह क्या एड्रेस होगा. क्या वर्षा पटेल, व्हाट आर यू सेइंग मैम? फ्रॉम मी जहां भेजा, जहां, ओके, जहां भेजा, भेज रहे वह क्या एड्रेस होगा. नहीं, प्लीज टाइप इन इंग्लिश. यू वांट टू आस्क, यू आर सेंडिंग अ लेटर फ्रॉम यू. ओके, तो अगर मैं एनवलप चाहिए तो मैं मंगा के दे बताती हूँ. यहाँ पर आप अगर कोरियर भेज रहे हो तो जो एनवलप है उसके ऊपर आपका एड्रेस यहाँ पर रहेगा और नीचे फ्रॉम एड्रेस यहाँ पे लिख सकते हो.
अगर कोरियर भेज रहे हो तो टू एड्रेस यहाँ पे लिखोगे पीछे, या तो पीछे भी लिख सकते हो फ्रॉम एड्रेस। अभी मान लीजिए कि ये एक एनवलप है, तो मैं यहाँ पर ये टू एड्रेस लिख के यहाँ पे टू करके यहाँ पे जो भी है ऐसे लिखूंगी। उसके बाद में वेट, आई विल शो यू पेपर। I will get a paper, plain paper, and show you. या मान लीजिए कि ये ही एनवलप है। ओके, सो आप यहाँ पर टू लिखोगे, फिर यहाँ पर आपका नेम लिखोगे, फिर व्हाट यू विल राइट द एड्रेस। एड्रेस में क्या रहना चाहिए यहाँ पे, ये आपका नाम नहीं, किसको भेज रहे हो, रिसिपिएंट, रिसिपिएंट्स नेम, ये रिसिपिएंट्स नेम लिखोगे। फिर या तो अगर बिजनेस लेटर है तो बिजनेस का क्या नाम है वो लिखोगे। business name you'll write, then you'll write the address. एड्रेस में क्या ना रखना है, डोर नंबर या नो, जो भी डोर नंबर है मेंशन करना है, स्ट्रीट मेंशन करना है, फिर बाद में सिटी, स्टेट और कंट्री। यहाँ पे पिन कोड इंपॉर्टेंट है। So this is how you will write the address. Then you will turn over and you can write over here from. आपका भी एड्रेस वैसे ही फॉर्मेट में लिखना है। क्लियर? अदरवाइज यू कैन राइट हियर आल्सो फ्रॉम एड्रेस। आजकल फोन नंबर्स भी लिख देते हैं यहाँ पर, ताकि बहुत बड़ा सही तरीके से कुरियर जाए। सो यू कैन राइट लाइक दिस आल्सो, और एल्स। यस, नाउ योर डाउट इज क्लियर वर्षा पटेल। सो जिसको भेज रहे हो उसको एनवलप के ऊपर लिखोगे आपका एड्रेस फ्रॉम करके, नीचे आप छोटा सा लिखोगे। क्लियर? Please write this. I want to rub the board and I will show you how to do the content. Finish writing? Yes. So here you will conclude your lovingly and here you will conclude your sincerely. Right. So layout is clear. Any doubt in the layout? वर्षा पटेल, क्या मैंने आपका सवाल सही समझा? क्योंकि प्लीज डोंट टाइप इन हिंदी, type in English. When you are given an opportunity to speak English or write English and no one is going to mock at you, why don't you utilize the platform? Please type in English. Please speak in English. मुझे ऐसा मौका मिले ना, मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। कि क्या है, कोई हंसने वाला नहीं है हमारे ऊपर। हाँ, अगर हंसेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा एटीट्यूड रहना चाहिए आपको। आपको सीखना है ना। बच्चा क्या करता है, गिर गिर के ही चलना सीखता है ना, ऐसे थोड़े चल लेता है। तो व्हाई डोंट यू राइट इन इंग्लिश? आपको या आपके ऊपर डाउट है तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ? आपको आपके ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि कोई बात नहीं है, गलत है तो भी मैं सीख लूंगी। प्लीज राइट इन इंग्लिश। थैंक यू। Okay, now let's go. You found the layout now. Whatever is that, you write your from or to address, और फिर यहाँ पर सब्जेक्ट लिखना है, लिखिए। फिर रेस्पेक्टेड सर, यहाँ आपको जो भी लिखना है, डियर सर भी आजकल लिखते हैं, डियर सर मैडम भी लिखते हैं, या रेस्पेक्टेड लिखना है तो भी लिख सकते हैं। ओके ओके, यहाँ आजकल नाम भी बुलाते हैं, जैसे कि बोलते हैं सर मैडम भी नहीं बुलाते हैं, उनका सीधा नाम भी लेके फिर बाद में यहाँ पर कंटेंट लिख के फिर लेसन जो है कंक्लूडिंग। क्लोजिंग सेंटेंस हमेशा रहना चाहिए। कोई भी इसमें आपको बोर्ड दिख रहा है आपका, क्लोजिंग सेंटेंस हमेशा रहना चाहिए। जैसे कि आई लुक फॉरवर्ड to hear from you. I look forward to hear from you. ऐसे भी लिख सकते हैं। I am looking forward to meet you in person. अगर नॉर्मल इनफॉर्मल लेटर में है तो आप लिख सकते हो I am looking forward to meet you in person. मैं बहुत ही
उत्तेजित हूँ कि मैं तुमको अब सामने मिलने के लिए, ऐसा करके इनफॉर्मल में ऐसे भी कंक्लूडिंग लेटर, या गिव माई लव, जैसे मैंने बताया था, गिव माई लव टू द एंटायर फैमिली, गिव माई लव टू छोटू, अगर घर में कोई छोटू है तो छोटू को मेरा प्यार देना, like that you have to conclude the closing the sentence or closing the letter. Okay, now here in the middle what you will write, you will write the reason कि क्या वजह है लिखने की आपको लेटर, अगर फॉर्मल है इनफॉर्मल है जो भी है आपको वजह देनी पड़ेगी। और स्टार्टिंग में ग्रीटिंग्स, स्टार्टिंग में मैंने बोला ग्रीटिंग्स में आपको जैसे कि हाउ आर यू, ऐसे करके स्टार्टिंग में आई एम गुड, हाउ आर यू करके आप शुरू करोगे। ऑल राइट, सो दिस इज हाउ इज दैट। नाउ लेट्स गो टू द कंटेंट। नाउ कंटेंट मैंने क्या प्रिपेयर आपके लिए किया है कि आप आपके विलेज ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेटिव VAO को लिख रहे हो लेटर, VAO। कल देखे हमारे पास समय है अभी, ओके है समय है। सो VAO के लिख रहे हैं, VAO क्या है, विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, राइट। तो हमने फॉर्मेट समझ लिया है कैसे लिखेंगे। आपका टू, आप पहले आप टू करके यहाँ पर भी लिख सकते हो, इस तरफ भी लिख सकते हो, इस तरफ तो पूरा यहाँ पर एक साइड ही फॉर्मेट आप प्रैक्टिस कीजिए। ओके, अदरवाइज यहाँ पर आपका नाम लिख के, यहाँ पर डेट लिख के, फिर यहाँ पर टू लिख के आप किसको लिख रहे हो, तो VAO पूरा फॉर्म पूरा लिखना है आपको, शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखना है, मैं इसको समझा रही हूँ। फिर वो कौन सा जगह है, वाराणसी है तो वाराणसी जो कौन सा जगह है करके आपको आपका सिटी और आपका स्टेट लिखना है। ओके, यहाँ पर सिटी और स्टेट लिखिए। फिर आप यहाँ पर लिखोगे रेस्पेक्टेड या डियर सर, रेस्पेक्टेड सर या मैडम, आपको जो अगर मालूम है वो कौन है, सर है कि मैडम है, उनका ऐसे एड्रेस करोगे आप, फिर लिखोगे। then we can write the content. Now content मैं यहाँ पर लिख के बताती हूँ, ये मैं बोर्ड रब करती हूँ। ओके, मैं रब करूँ बोर्ड। यहाँ पर सब्जेक्ट लिखना है पहले, we'll write the subject, टू लिख के आप एड्रेस लिख के, उसके बाद में यहाँ पे ऊपर डेट भी लिखिए, प्रॉपरली लिखती हूँ मैं यहाँ पर डेट, टू और एड्रेस, यहाँ छोटा सा बॉक्स लिख रही हूँ, फिर जगह नहीं रहेगा मुझे, ऐसा लिख के फिर आप सब्जेक्ट लिखोगे। क्या सब्जेक्ट है अभी, सब्जेक्ट यहाँ पर हम क्या बोले, हम पानी का शॉर्टेज बोले हम, तो शॉर्टेज ऑफ वाटर, या तो आपको मान लीजिए कम्युनिटी सर्टिफिकेट लेना है, कम्युनिटी सर्टिफिकेट। ओके, आपको जो भी आपका कंटेंट सब्जेक्ट है आप वो लिखोगे। फिर अभी कंटेंट लिखते हैं। फिर कंटेंट कैसे लिखेंगे, पूरे विलेज से आप ये उसको उनको लिख रहे हो, पूरे विलेज के ऑन बिहाफ ऑफ द एंटायर विलेज और राइटिंग बिहाफ ऑफ के द्वारा, उनके सबके द्वारा आप लिख रहे हो। सो विल राइट, फर्स्ट आप ग्रीट करोगे कि आई होप दिस लेटर finds you well. Okay, then you will come to the matter. We are facing shortage of clean drinking water, कि हमारे साफ सुथरा स्वच्छ पानी जो है हमको नहीं मिल रहा है, शॉर्टेज है ड्रिंकिंग वाटर इन आवर एरिया। और जो भी आपका मेंशन करना हो, आपका जैसे कि अखरी करके आपका आपने उस दिन बोला था, शिवपुरी अखरी जो भी है वहां पर लिखोगे। ओके, वो एरिया वहां पर लिख के फिर बाद में आप बोलोगे ऑल द वेल्स। क्या रीजन है, यहाँ पे जगह नहीं है, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, all the wells have dried up। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ जैसे, मगर पैराग्राफ यहाँ ऐसे नहीं लिखने का, हम क्या लिख रहे हैं, हम वेस्टर्न सिस्टम जैसे यहाँ पर एक ही साइड में लिख रहे हैं, देयरफॉर
we request you to be kind enough to take immediate steps to look into this matter. ये मैटर में क्या मैटर है कि आपका पानी जो है शॉर्टेज है, वो मैटर में आप जितना जल्दी इमीडिएट ओके टेक स्टेप्स टू डू इट. ओके, लास्ट में कंक्लूड करना है हमको. वी लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू. वी आर कंक्लूडिंग. मैंने बोला था ना, कंटेंट लिखो, क्या प्रॉब्लम है पहले बताओ, उसके बाद में कंक्लूड करो लेटर को, उसके बाद में आप लिखो योर्स फेथफुली या योर्स सिंसियरली. योर्स फेथफुली या आपका नाम और फोन नंबर लिखना है, लिख लीजिए. बोर्ड दिख रहा है आपको? ओके, now is it clear? Board is clear? Yes. Any doubts in this? Yes, ma'am. All right, ma'am. Okay, Soni, Anjali, Soni ji, yes. Any doubts in this? कि कैसा लिखना है? तो अभी what will be your homework is you will practice by community certificate आपको चाहिए करके आप रिक्वेस्ट करोगे कि उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है. कम्युनिटी सर्टिफिकेट आपके यहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, जैसे आधार कार्ड देना पड़ता है या क्या देना पड़ता है, उसको डॉक्यूमेंट्स अटैच्ड नीचे आप लेटर लिख के आप क्या बोलोगे कि रिक्वायर्ड ब्रैकेट में रिक्वायर्ड documents are attached with this letter. अगर आप कुछ भी डॉक्यूमेंट्स इसके साथ, और जो नीचे साइन करेगा अगर पूरे विलेज के द्वारा है तो बहुत लोग वहां पे जितने लोग हैं साइन करेंगे. आप ऐसे ऐसे एक्स एक्स करके मार्क करके सबको साइन कराओगे. ओके, सो अगर आप एपी लेटर लिखोगे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, अगर आपको कम्युनिटी सर्टिफिकेट अप्लाई करना है तो आप वो डॉक्यूमेंट्स को मेंशन करके और अटैच करके लिख के आप एक लेटर लिखोगे आपके विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को कि मुझे कम्युनिटी सर्टिफिकेट चाहिए. और आप कंटेंट बराबर लिखोगे, मैंने जैसे सिखाया है आपको. डेट, आप डेट बाद में एड्रेस के बाद भी डाल सकते हो. आपके एड्रेस के बाद फ्रॉम लिखोगे, आपका एड्रेस लिखोगे, आपका नाम एड्रेस, फ्रॉम नेम एंड एड्रेस, देन डेट, देन टू लिख के उनका जो नाम और एड्रेस, फिर रेस्पेक्टेड या डियर सर, डियर मैडम, देन द कंटेंट. कंटेंट के पहले अगर फॉर्मल लेटर हो तो आप सब्जेक्ट लिखोगे एंड देन राइट डियर सर करके आप कंटेंट लिखोगे. व्हेन कंक्लूजन लिखोगे, फिर लास्ट में योर्स फेथफुली या योर्स सिंसियरली लिख के कंक्लूड करोगे लेसन को, आई मीन लेटर को. क्लियर? राइट? यस. So let's look at the steps again and then we'll conclude today. From address, ये फर्स्ट आप डेट भी लिख सकते हो यहाँ पर, डेट, फ्रॉम एड्रेस, देन टू एड्रेस, और सब्जेक्ट 5 डियर करके जो भी है आपको मेंशन करना है. दिस, देन द कंटेंट, देन कंक्लूजन ऑफ द कंटेंट, conclusion, then 8 yours sincerely, yeah, faithfully, then your signature. This is the main thing which you have to note, that you are mentioning all this.
Okay, in this content, it can be 1 paragraph, 2 paragraph, or whatever it is. Only thing over here it will change is whether if it is a informal letter, then you will write over here yours करके सिर्फ साइन भी कर सकते हो, yours lovingly, truly, या सिर्फ yours करके भी लिख सकते हो. बाकी सब और सब्जेक्ट नहीं आएगा इनफॉर्मल में, बाकी सब सेम ही रहेगा आपको. ओके, राइट. So you can maintain that you are writing everything in one side itself. Don't need to get confused to write this side, that side, yours truly. यहाँ पे sign करो, वहाँ पे sign करो. No need at all. This is the easiest way to remember. Right. Okay. I think it's time up today. So tomorrow I will discuss regarding the number names. Yeah, so all of you will write. बहुत लोग होमवर्क सिर्फ वो 4-5 लोग हैं वही होमवर्क कर रहे हैं. आंचल कर रही है, अंजलि सोनी, वर्षा पटेल, साधना, बेबी शाजी, प्रीति, घुमा फिरा के इतने लोग ही कर रहे हैं. बाकी लोग क्यों नहीं होमवर्क कर रहे हो? Everyone should do, no? Practice is for everyone, right? और अंजलि सोनी जी, जब भी आप वेस्टर्न सिस्टम, इंडिया इंटरनेशनल सिस्टम कर रहे हो, तो बहुत लोग क्या कर रहे हैं, आपको कोई भी नंबर दिया गया हो तो आप उनको पहले 3-3 करके डिवाइड करोगे, 2 करके नहीं है. इंडियन सिस्टम में आपको अगर यही नंबर है, आप क्या है, इस यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पर 2, फिर तुरंत ये कमा डालने के बाद तुरंत ही आपको क्या करना है, उनको क्या ग्रुप करना है. ग्रुप करने के टाइम में आपको मालूम पड़ेगा कि ये वंस का जगह है, ये थाउजेंड्स का जगह है, ये मिलियन का जगह है. फिर करने के बाद उनको यहाँ पर वंस, टेंस, 100, ये 1000, ये 10,000, ये 100,000, ये मिलियन, ये 10 मिलियन, ये 100 मिलियन. तो यहाँ ऊपर जो लिखा है उसको ही आप पढ़ने वाले नो. 438 मिलियन. यहाँ पे क्या है, जैसे इधर पढ़ रहे हैं ना, 896. सेम यहाँ भी वही पढ़ोगे, 438. फिर सीधा ऊपर कहाँ पे क्या है, इसके ऊपर क्या है, मिलियन है, तो इसको मिलियन बताओगे. वापस इसको ऐसे ही इसके जैसे ही पढ़ोगे, 567. ऊपर क्या है, 1000, तो 1000 पढ़ोगे. ये भी क्या है, 896. बस उतना, क्योंकि ये वंस है तो 96 कंक्लूड कर दिया. बहुत ही इजी है वेस्टर्न सिस्टम, जो इंटरनेशनल सिस्टम है. आपको सिर्फ ग्रुपिंग बराबर करोगे तो इजीली हो जाएगा. और यहाँ पर क्या है, आपको यहाँ पर भी ऐसे, यहाँ पर 3, ये 2, ये 2, ऐसा करने का. 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़. ये भी यहाँ पर वंस है, ये थाउजेंड है, ये लैक्स है, और ये करोड़ है. बस यहाँ पे 4 आ रहा है ग्रुपिंग, यहाँ पे 3 आ रहा है ग्रुपिंग, क्योंकि ये 3-3 नंबर हो गया, यहाँ पे 3, 2, 2, 2 हो गया. तो आप वापस प्रैक्टिस कीजिए और मुझे सब दो एक ही नंबर को दोनों सिस्टम में लिख के बताइए. क्या वो करेंगे आप लोग होमवर्क, एक ही नंबर को दोनों सिस्टम में लिख के बताओगे. क्लियर? अभी इसको बोलिए, देख कैसे करने का. 4 बोलिए कैसे करेंगे हम, ये तो मैंने बता दिया. इसको कैसे करेंगे, 43 करोड़ 85 लैक्स, क्योंकि ये लैक्स में है ना बेटा. ओके, 85 लैक्स यहाँ पे 1000 में है. Shall I write it more neatly and show you? और एक बार और एक नंबर लिख लेते हैं. कोई भी नंबर आप बोलिए चैट बॉक्स में. मैं रैंडमली कोई नंबर लिख रही हूँ. ओके, तो यहाँ हो गया. ये हो गया वंस, ये हो गया 1000, और ये हो गया
वंस, टेंस, डिजिट तक सेम है दोनों, नेशनल और इंडियन और और 100 ऐसे ही होमवर्क करोगे आप। फिर वापस इसको भी मैं ग्रुपिंग करूंगी। इसको मैं ग्रुपिंग कैसे करूंगी, पहले 3, उसके बाद में 2, उसके बाद में 2। तो यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। ओके, फिर यहाँ पर मैं, ये क्या है, वंस है, ये क्या है, 1000 है, ये क्या है, लाख, लैक्स है, और ये क्या है, क्रोर्स है। फिर अभी मैं इसको यहाँ पर ऐसे करूंगी, ये वंस हो गया, टेंस हो गया, 100, ये 1000 हो गया, 10,000, ये लाख हो गया, क्यों लाख में 10 लाख, ये करोड़ का है, करोड़, 10 करोड़। क्लियर? ऐसे आप ग्रुपिंग करो, उसके बाद में ही आपको होगा। अभी इसको देखिए, अभी इसको नंबर नेम में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 457 मिलियन लिखना है, या मैं बताऊं ऐसे ही ओरली? मैं लिख देती हूँ आपको, 457, 450, ये क्या है, किधर है, मिलियन में है, इसलिए मिलियन लिख दूंगी। फिर अगला 896, 896, ये क्या है, कहाँ पर है, 1000 में है, तो यहाँ पर 1000 लिखूंगी। फिर ये क्या है, 790, बस सिर्फ 90 है, यहाँ पर वंस के जगह में कुछ नहीं है, 90 है बस। ओके, क्लियर? उसके बाद में यहाँ पर आएंगे, अभी ये क्या है, कहाँ पर है, करोड़ में है, सो 45 करोड़, 45 करोड़। और ये क्या है, कहाँ पर है, लाख में है, सो 78 लैक्स। बोर्ड दिख रहा है, 78 लैक्स। फिर ये कहाँ पर है, 1000 में है, फिर 96,000, फिर ये सेम उसके जैसे ही 790 हो गया आपका नंबर में। किसको डाउट है अभी बोलिए, बोलिए डाउट है तो। अभी सब लोग ऐसे ही करेंगे, बेबी शाह जी ने एक नंबर दिया है मुझे, अभी मैं वो नंबर यहाँ पर लिखूंगी, तो आप लोग सब वही होमवर्क करके आइए, उस नंबर पर ही लिखिए, मैं देखती हूँ क्या नंबर। तो हम लोग क्या करेंगे, पीछे से ही, यहाँ से कोई भी नंबर देगा तो पीछे से यहाँ पे टैबलर कॉलम, आप टैबलर कॉलम ड्रॉ करके भी नंबर लिख सकते हो। अभी बेबी शाह जी ने क्या नंबर दिया है मुझे, 7 दिया है, फिर 8 दिया है, फिर वापस 3 दिया है, फिर क्या दिया है बेबी शाह जी ने, वापस 7 दिया है, वापस 3 दिया है, फिर 5, फिर 4 दिया है, फिर 1 दिया है, फिर 2 दिया है। अभी हो गया, तो इसको अभी फटाफट लिखिए नंबर नेम में, बेबी शाह जी आप ही क्या लिखोगे, 214,537,387, बस सिंपल, फटाफट बोल सकते हैं। देखिए, सिर्फ इसको हंड्रेड्स में पढ़ना है, और 100 के ऊपर ये किधर है, मिलियन में है तो मिलियन बताना है, 1000 में है तो 1000। इसके बाद में बिलियन आता है, तो इधर भी जो भी नंबर आएगा यहाँ पर समझो ऐसे आ गया 54 करके या 0, तो ये 354 बिलियन, जो हमारे यहाँ पे अरब खरब करके हिंदी में बोलते हैं, अरब एंड खरब, वो भी कल देखेंगे हम थोड़ा देर। ठीक है, एनी डाउट्स? अभी डाउट क्लियर हो गया या अभी भी डाउट है? किसको डाउट है तो बताइए, मैम मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है करके। सीमा जी, साधना जी, बताइए कुछ डाउट है, या तो थम्स अप दीजिए, डाउट नहीं है तो।
No doubt, Anjali, no doubt. Doubts का spelling DOUBT. I have already taught. तो सब लोग इस पर होमवर्क कीजिए या और कोई नंबर लीजिए, आप चाहिए तो बिलियन पे और अरब पे भी कर सकते हो. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे. यस, that's all for today. Okay, any other doubts you have regarding the letter writing? You can unmute and speak if you want to. Karthik sir, please allow unmute. Yes, ma'am. Yes, बताइए, अभी अनम्यूट कर सकते हैं आप लोग. कुछ डाउट है, पूछना है तो पूछ लीजिए. यस संगीता देवी. No, ma'am. No doubt. No doubts. So everyone should do the homework. Today I think I have around 16 to 17 participants, means all of them should do the homework. Okay, only few are doing. सोनम पांडे, आप लोग आपने होमवर्क करके मैंने कभी देखा नहीं है. ज्योति कुमारी जी, आपका भी होमवर्क नहीं मिला है मुझे अब तक. यस. Hello, ma'am. Write a letter. यस, मैम लेटर भी लिखना है. हाँ लेटर भी लिखिए, और आपको चाहिए फॉर्मल इनफॉर्मल जो भी लेटर लिखना है लिखिए. एंड फॉर्मल लेटर लिखना है तो कम्युनिटी सर्टिफिकेट पर लिखिए कि मुझे वो कम्युनिटी सर्टिफिकेट मेरे बच्चे के लिए चाहिए, कि वो 10th में है उसको चाहिए करके आप लोग लिखिए एक लेटर, और ये भी Okay. प्रैक्टिस कीजिए. ऑलराइट, और कुछ? No. थैंक यू अंजलि सोनी जी. आपको अगर मैं होमवर्क नहीं दूं तो भी आप कुछ ना कुछ ट्राई करके नया होमवर्क करके भेज देते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है. आप इतना इंटरेस्ट दिखा रहे हो. थैंक यू सो मच अंजलि जी. ओके, दैट्स ऑल. जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद. Thank you, ma'am. Good afternoon, ma'am.